Hello students, welcome to English channel English at Ease. कोई है? कोई है? Children, how do you feel? That is the atmosphere. That is the atmosphere of the poem which I am going to teach you. That is the listeners. The listeners, composed by Walter de la Mare. He is listed among the poets who is called Coleridge Reborn. The spirit of his poetry is supernaturalism. Okay, students, that is the poem The Listeners was written in 1911 and was published in 1912. Children, the poem deals with the age-old effort of human to explore the world beyond death. Children, the poem deals with a host of phantom listeners. The traveler from the very beginning is a very secondary character. It is the listeners who create, maintain, and heighten the suspense and awe of the poem. The whole poem has been based upon the listeners. So the title is undoubtedly apt and suggestive. Now, children, this poem, you can say that you have seen so many horror films and this serial like Ahat and so many else. And in the films you have seen also like that. Suppose that Bhul Bhulaiya, you can remember the song yet. That is the song in the background. Okay. So these are the atmosphere which make us to feel anything else which is not in our real life. There's they are something else who dwelled beyond this world. Okay, students, and like that sound you have remembered such आपने महल में ऐसे छन छन आवाज सुना होगा. That is the atmosphere. Okay, students, today I am going to teach you. This poem is very much interesting, and you can say that the background of the poem is supernatural. Okay, that already I have told you. And now you see children that ये जो poem है इसका बेसिकली ये एक सुपरनेचुरल पोएम है जहाँ पर हम लोग कह सकते हो ये मिस्ट्री से भरा हुआ है. दिस पोएम इज फुल ऑफ मिस्ट्री. You know, student, that literature is meant not only the morality, based on the morality and other lessons, that it is not sure that all the literature, novel and the play and the poem you will get some morality, some lessons. ये कोई ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स जब आपको हर लिटरेचर में कुछ मुझे मोरलिटी मिलेगा, कोई लेसन मिलेगा. ये कोई
नेसेसरी पार्ट नहीं है। लिटरेचर meant ऑफ एन्जॉयमेंट, टू इमेजिन, टू फील, एंड अगर ये सभी कंडीशन को कोई फुलफिल करता है तो हम उसे बेशक एक लिटरेचर कह सकते हैं। इस पोएम में कोई ऐसा लेसन हम लोगों को सीखने के लिए नहीं मिलता है। ये पूरा मिस्ट्री से भरा हुआ एक लेसन है, एक पोएम है, वाल्टर डे ला मेयर ने लिखा है और ये काफ़ी ओल्ड, दैट इज़ द ओल्ड पोएम। जस्ट आई हैव टोल्ड यू that it was published in 1912. Okay, so that it is an old poem. And children, that is the fool of the mystery. We can't say who is the traveler. ऐसे ये पोएम नैरेटिव स्टाइल में लिखा गया है। मीन्स दैट ये जो पोएट है वाल्टर डे ला मेयर, यही नैरेटर है। ही इज़ हिमसेल्फ द नैरेटर ऑफ दिस all the stories, all the condition, all the situation which is described in this poem. And the rhyme scheme of this poem is A B C D C B, A B C B and B E. And the narrative, it is the narrative style poem, and the timing of the poem is very old. Okay students, now let's start the poem. You know, this poem is very popular literature in your syllabus, although all so many classes I have seen this poem is included, and in the secondary level, in the higher secondary level, different state government books, this poem is included, and this is the important part of the lesson. And in class 7 I have seen of Oxford publication, that is the New Pathways. This poem is also the part of the syllabus of unit 6, section 3. Okay, whatever some of the question answers and MCQ and the exercises I will provide you in the description box. In this video I will discuss only the translating of the poem and explaining you. I just explain you. Okay, so that is the now we can start now one by one. First line, you see that is the dramatic starting. एक जैसे फिल्म में आप देखते हैं ना, हॉरर फिल्म में आप देखते होंगे, इस तरह से कहानी शुरुआत होता है। इसलिए मैंने आपको इस तरह से म्यूजिकल करके बताया, और ताकि आपको सुनने से और अच्छा लगे। The first line of the poem like that: "Is there anybody there?" said the traveler, knocking on the moonlit door, and his horse in the silence champed the grasses. एक ट्रैवलर, जैसे कि आप पिक्चर में दिखते होंगे, ये सभी इमेजिनरी फिगर है। ट्रैवलर नॉक करता है, सबसे पहले पूछता है। ये ड्रामेटिक वजह से पोएट ने इसको लिखा है। इज देयर एनीबॉडी देयर, कोई है? खट 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 खट। मूनलिट डोर मीन्स दैट इज द एटमॉस्फेयर इज मूनलिट. ओके, देयर इज द मून इन द स्काई एंड इट इज शाइनिंग, और उसका एक घोड़ा जो जिस पर वो सवारी होके आए थे, मतलब यहाँ पर ट्रैवलर एक घुड़सवार है। ओके, हॉर्स राइडर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, कोई आंसर नहीं दिया। ऑफ द फॉरेस्ट फॉर्नी फ्लोर एंड बर्ड फ्लू अप आउट ऑफ द टर्रेट अबाउट द ट्रैवलर हेड, एंड ही स्मोट अपॉन द डोर अगेन second time. That is the situation, supernatural atmosphere that already I told you. Now see that situation is like that dark forest, moonlit night. Turret means आप देखे होंगे बहुत सारा ओल्ड बिल्डिंग में ऊपर में एक छोटा सा टावर जैसा छोटा सा घर होता है, और ये टावर से जो है ये मतलब धुआं वगैरह निकालने के लिए उस ज़माने में इस तरह से घर बनाया जाता था।
और इस टॉयलेट से एक बर्ड जो है मतलब उड़ते हुए चला गया। एक डरावना सीन जैसे आप लोग बहुत सारा सीरियल में देखे होंगे ना, ऐसा ही दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ दिस पोएम, दैट वन बर्ड वॉज फ्लाइंग अवे, उड़ के चला जाता है, फर 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 करके उड़ के चला जाता है। तो सिचुएशन यू कैन इमेजिन इट, दैट इज़ द सुपर नेचुरल। सेकेंड टाइम एनी स्मोट अपॉन द डोर अगेन ए सेकेंड टाइम, इज देयर एनीबॉडी देयर, क्या कोई है, खट 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 खट, फिर से ठकठकाता है। बट नो वन डिसेंडेड टू द ट्रेवलर, the head from the leaf fringed seal leaned over the looked into the grey eyes। मतलब क्या है, इस जगह में नरेटर जो है, पोइट जो है, वो ग्रे आइज मैन है। मतलब इनका आँख जो है ना बहुत ग्रे कलर का है। और इसमें here the poet is described like that way, he has grey eyes। ये जो पोइट है मीन्स द नरेटर, यू कैन से द ट्रेवलर, ये सभी एक ही आदमी है। तो ट्रेवलर का ही ग्रे आइज है। तो कहना चाहते हैं कि बट नो वन डिसेंडेड टू द ट्रेवलर, ट्रेवलर को कोई नहीं ऊपर से झाँक कर देखा। नो वन डिसेंडेड टू द ट्रेवलर मतलब जैसे कि हम लोग कोई अगर आप स्टेयर का बिल्डिंग हो तो आप अगर नीचे खटखटाते हो तो ऊपर से कोई देखते हैं ये कौन है, कौन आए हैं। तो ऐसे कोई नहीं देखा, उनके आँखों के तरफ देखकर कोई नहीं आया। ऐसे एक बर्ड उड़ के चला जाता है। ये एक ऐसा ही हॉरर फिल्म का हॉरर एक सिचुएशन क्रिएट करता है। द बर्ड्स फ्लाइट इन मेयर्स पोएम, द लिसनर्स takes the traveler in the grip of terrible fear, you can say. The traveler out of fear smites the door, ठक ठक करता है। His fear has nicely been hinted at by his smite. Okay student, that is the thing, after all you see that। और वो जो नाउ नो हेड फ्रॉम द लीफ फ्रिंज्ड सिल, सिल मीन्स जो खिड़की के जो नीचे का जो पोर्शन है उसमें वो जो सिल है उस पर बहुत दिनों से बहुत सारा पत्ता, बहुत सारा मतलब इस तरह का जे कोई हॉन्टेड हाउस, पहले मैंने बताया जे एक डेसोलेटेड हाउस है। एक डेसोलेटेड हाउस में जैसे होता है, आप देखे होंगे इस तरह का सिचुएशन, वीराना घर लाइक दैट, and there is the unwanted trees and plants are there, that is the situation। तो ऐसे ही leaf fringed seal है। Now see that where he stood perplexed and still, but only a host of phantoms listeners that dwelt in the lone house then stood listening। They dwelt in the lone house then stood listening, in the quiet of the moonlight to the voice from the world of man stood thronging the faint moonbeams on the dark stair। Students, that is the situation of the poem। Now see that some of the phantoms, ए स्ट्रेंजर कहता है, अब वो रियलाइज़ करता है, वो एहसास करता है कि नहीं इस घर के अंदर ज़रूर कुछ फैंटम्स हैं। फैंटम्स मीन्स एक बिना शरीर का आत्मा, हम लोग ऐसा मानते हैं। प्रेतात्मा मतलब ऐसा आत्मा जिसका कोई बॉडी नहीं हो। मतलब ये जो हम लोग का जो वर्ल्ड है, जो अर्थली वर्ल्ड जिस पृथ्वी में हम लोग रहते हैं, ये लिविंग वर्ल्ड है। और एक वर्ल्ड ऐसे माना जाता है जहाँ पर क्या है, फैंटम्स रहते हैं, भूत, घोस्ट, ये सब। मतलब ये जिसको कोई बॉडी नहीं हो, ये लोग अनबॉडीड है। और ये दोनों वर्ल्ड के बीच में एक chasm है, देयर द chasm you can say a gap, a huge gap, that these the phantoms they never can contact with these human beings, physical human beings। हम लोगों के शरीर के साथ, हम लोगों के साथ
कभी भी ये फैंटम्स मिल नहीं सकता है। दैट इज़ द ट्रेजिडी। उस वर्ल्ड के लोग कभी भी इस वर्ल्ड के लोगों के साथ मिल ही नहीं सकता। लोग इसको मानते हैं, विभिन्न तरह से ये फिल्मीकरण किया जाता है, फिल्माइजेशन किया जाता है। आपने देखा होगा ये घोस्ट्स बात करते हैं, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली दैट कैन नॉट बी नेवर एवर डन और इन प्रैक्टिकल। That is only the imagination. You have seen in the films and the serials, but that is not practical. Okay students, तो like that the traveler ने भी ऐसे ही बताया जे मुझे लगता है इस घर में द dwelt in the lone house then, इस घर में कुछ फैंटम्स रहता है। और पोएट को भी एहसास होता है जे ये सभी फैंटम्स इस दीवार के उस पार, मतलब घर के अंदर है, जो हमसे बात नहीं कर सकता है। दे कैन नॉट स्पीक एनीथिंग मोर एंड दे कैन लिसन ओनली, सो दैट दे आर द लिसनर्स। इसलिए पोएट वाल्टर डिलामेयर ने इस पोएम का नाम लिसनर्स रखे हैं। केवल सुन सकते हैं, ऐसे कई लिसनर्स है, इसमें कई लिसनर है, इसलिए उन्होंने बताया लिसनर्स। दैट इज़ द फैंटम्स, ए ग्रुप ऑफ फैंटम्स, बहुत सारे फैंटम्स। टू द वॉइस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैन, इस दुनिया के लोगों के साथ उस दुनिया के लोग मिल नहीं सकते। स्टूड थ्रॉन्गिंग द फेंट मूनबीम, थ्रॉन्गिंग मीन्स एक साथ होना। ये सभी घोस्ट जो है ये एक साथ होकर एक जगह में खड़े हैं, घर के अंदर इकट्ठा होकर ये लोग सुन रहा है। ऐसे माना जाता है ट्रैवलर कभी प्रॉमिस किए होंगे जो मैं ज़रूर आऊँगा। दैट might be happened, you can say that once the traveler promised them he will come, ऐसा वादा किए होंगे जो मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन हो सके इट माइट बी हैपेंड, ऐसा हुआ होगा जो घर के सभी मेंबर्स जितने थे ये सब मर गए और सब फैंटम्स बन गए। अब क्या है, वो ट्रैवलर ने अपना प्रॉमिस को रखने के लिए ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और वो आते हैं। लेकिन इस बीच में जो लोग थे सब तो फैंटम्स बन गए, अब वो मिल नहीं सकते हैं, ना गेट को खोल सकते हैं। ये ऐसा ही एक सिचुएशन के बारे में पोएट ने एक दोनों वर्ल्ड को बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन किए हैं। एक ट्रेजिडी है, दोनों वर्ल्ड के बीच में जो एक दरार है, एक ट्रेजिडी है, एक कहो जो गैप है, इसको बताया है। That goes down to the empty hall, hickening in an air stirred and shaken by the lonely traveler's call. And he felt in his heart their strangeness, their stillness answering his cry. उनके ये आवाज़ बार बार गूंज रहा था। हिकनिंग मीन्स दैट सब लोग बहुत, मतलब जैसे होता है ना दीवार में कान रख के सुनना, तो ये जो लिसनर्स है, ये जो फैंटम्स है, ये सब दीवार के उस पार से बहुत गौर से सुन रहा था। जिट कोई आया है, वो आदमी आए हैं जिन्होंने हम लोगों से वादा किए थे। लेकिन ट्रेजिडी यही है जे अब वो फैंटम्स इस ट्रैवलर का साथ रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है। दे cannot respond. Okay students, now the class listen. The next part. While the horse moved, cropping the dark tuft. राइडर का जो घोड़ा है, हॉर्स पर सवारी होके जो घुड़सवार आए हैं ट्रैवलर, उनका घोड़ा बेखबर, कोई से कोई मतलब नहीं है, घास खा रहा है अपना आवाज़ के साथ वो अपना घास खा रहा है। और पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसा ही सिचुएशन है, केवल घास खाने का एक जो खश खश ऐसी कुछ आवाज़ आ रहा है।
Okay, students, beneath the staring and leafy sky, for he suddenly smote on the door even louder and lifted his head. अब अंतिम बार, अब तो उनके पास ही हैड नो एनी ऑप्शन, अब क्या करेंगे। ट्रैवलर ने अपना प्रॉमिस रखे, अपना वादा को निभाया। आवाज़ किए लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया, और जोर से चिल्लाते हैं, लाउडर एंड लिफ्टेड हिज हेड, ऊपर तरफ देख के। जैसे कि आप कोई फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसे बिल्डिंग में जाओगे तो नीचे नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें अगर ठकठकाओगे तो कोई अगर नज़र नहीं आता तो ऊपर तरफ देखोगे, ये हो सके फर्स्ट फ्लोर में कोई होंगे, सेकंड फ्लोर में कोई होंगे। तो ऐसे ही ट्रेवलर ऊपर तरफ चेहरा करके देखते हैं और कहते हैं, टेल देम आई केम एंड नो वन आंसर्ड दैट आई केप्ट माई वर्ड, ही सेड। पोएट कहते हैं, कह देना मैं आया था लेकिन किसी ने भी उत्तर नहीं दिया, मैंने अपना बात रखा हूँ। That was the word. So from this dialogue, from this statement of the traveler, we can say that once the traveler had a good relationship of the members of this building, that haunted house now. ये जो आज जो डेसोलेटेड हाउस हम देख रहे हैं, वीराना जगह, वीरान घर पड़ा हुआ है, इस घर के लोगों के साथ कहीं ना कहीं राइटर कभी एक अच्छा रिलेशनशिप में थे और वह उन लोगों के साथ मिलते जुलते रहते थे। लेकिन आज दोनों का बीच में एक ऐसा ही एक गैप हो गया जिसको आप मिल नहीं सकते। दैट इज़ द ट्रेजिडी ऑफ द डेथ, you can say, students, the class, you know that is the tragedy of the death. After the death, nobody can meet, nobody can speak, nobody can communicate with them, with the phantoms. Whatever we see in the films and the serial and other novels, they are completely imaginary, fantastic, you can say. इसको फैंटेसी कह सकते हो। जो हम फिल्म में सीरियल में देखते हैं, नॉवल में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता है। दैट द पोएट इंडिकेट्स, ऐसे कवि ने इशारा करते हैं कि देखो कितना ट्रेजिडी है। जिन लोगों के साथ मैंने एक समय बात किया करता था, अच्छा रिलेशनशिप था, मैंने उस बात को निभाने के लिए आया, लेकिन आज क्योंकि उन लोग आज फैंटम्स बन चुके हैं। नेवर द लिस्ट स्टार मेड द लिसनर्स दाउ every word he spake fell echoing, echo होता है, echoing through the shadowiness of the still house, उस चुपचाप still house, शांत घर में कोई नहीं बाहर आता है, उनका आवाज़ इको होने लगता है। From the one man left awake, they heard his foot upon the stirrup. Stirrup, you know that, वो जो घोड़ा में देखोगे दोनों तरफ से एक राइडर को चढ़ने के लिए एक आयरन मेटल का बना हुआ पैर रखने का जगह होता है। तो ऐसे खटक आवाज़ आया, ऐसी आवाज़ आता है। जैसे ही राइडर ने घोड़ा पर सवारी हुए, when he galloped the horse, and then there was a sound upon the stirrup, खट से एक आवाज़ किया, and the sound of iron on stone, and how the silence surged softly background. Surge means फिर से दोबारा वो आवाज़ धीरे धीरे मिट जाता है और फिर साइलेंस सर्ज्ड, मतलब फिर से उस सिचुएशन शांत हो जाता है। मतलब इस जगह में पोएट कहते हैं जे एक
बहुत साइलेंट एक सिचुएशन था। केवल राइडर जब वहाँ पर आए, राइडर मीन्स घुड़सवार जब आए, तब वहाँ पर कुछ आवाज़ सुनाई दिया, कोई है, इज देयर एनीबॉडी देयर। लेकिन वो चले जाने के बाद फिर से साइलेंस सर्स्ट, साइलेंस रिस्टोर्ड, फिर से दोबारा शांत हो गए। When the plunging hoofs were gone, जब घोड़ा का पैर का खुर की वो आवाज़ अब सुनाई नहीं पड़ता होगा। घोड़े की आवाज़ जब चला गया है, तब फिर से उस जगह में शांत एक वातावरण हो गया। That is the silence restored in that place. Okay students, I hope that you have enjoyed this story very much. Now my part is finished, and you will get the remaining the exercises and the question answers part in the description box. Children, you subscribe my channel and press the bell icon so that you will get more and more interesting videos and lessons of your syllabus. Okay students, goodbye.